everyone. In the last class, we have discussed about the appropriation of the payment, and under that, we have discussed about the recovery of the payment of the course of law. Okay. So, when there is the debt by one party to the another party, then the how the debt can be recovered, that we have already discussed in the last class. Okay. So, we have discussed about the appropriation of the payment in the last class under section 59. And under appropriation of the payment, what we have understood that when there is the application of the payment where debt is to be discharged is indicated, then what is the circumstances over there? We have discussed that when the payment is to be done for the recovery of the debt, then the payment will be considered as the amount to be paid for the recovery of the debt only. What section 59 says, where a debtor owing several distinct debts in one person makes a payment to him, either with express intention or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment is accepted must be applied accordingly. That means under section 59 it has been said that, for example, there is a contract between the parties for the recovery of the debts. For example, I am a person, I have done the debt from you. मैंने आपसे डेप्ट लिया है. मैंने आपसे चार अलग अलग डेप्ट लिया है. Like I have taken one debt that cost you the rupees of the 3,000. I have taken you from another debt that cost around of the 2,000. The another debt that is cost around the 3,000, and the last debt I have taken from you that is up to the 10,000. Okay. So as I have taken the different specific amount of the debts from you, आज मैंने आपसे दूसरा दूसरा अलग अलग अमाउंट का डेप्ट मैंने आपसे लिया है. So it is my responsibility to recover you the debt. Yes or no? Because there is the agreement between you and me कि आप मुझे डेप्ट देंगे and I will recover you the specific amount of the debt. This is the agreement between you and me. That is the prior agreement that has been done already. Okay. So when, for example, I am paying you the amount of 10,000. Okay. At a one time, मैंने आपको एक टाइम पे 10,000 अमाउंट का पेमेंट करती हूँ. एंड आई एम स्पेसिफाइंग दैट ये जो 10,000 मैं आपको कर रही हूँ ना, मेरा जो 10,000 वाला डेप्ट है, द अमाउंट ऑफ 10,000 जो डेप्ट मेरा आपके ऊपर है, तो वो डेप्ट आप रिकवर कर दो. बाकी 2,000 का 3,000 का जो बाकी डेप्ट है वो मैं बाद में रिपे करूंगी. बट ये जो स्पेसिफिक 10,000 मैं आपको दे रही हूँ, मेरा 10,000 का जो डेप्ट था, आज दिस इज ए ह्यूज अमाउंट, उसी डेप्ट को मुझे पहले रिकवर करना चाहिए था. And for that purpose, I am paying you this specific amount of the money. So in these circumstances, the application of the payment for the debt will be happen to that 10,000 rupees only. वो 10,000 वाला डेप्ट पे ही आपका ये 10,000 का रीपेमेंट कंप्लीट हो पाएगा. गॉट इट? सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन हु इज पेइंग द डेट. वो किस डेट को पहले रिकवर करना चाहता है या चाहती है, उसका डिमांड के हिसाब से, उसका चॉइस के हिसाब से कि मैं ये डेट पहले भरपाई करना चाहती हूँ, अकॉर्डिंगली द डेट विल बी रिकवर्ड. ये हो गया अंडर सेक्शन 59. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. ओके. देन कम्स सेक्शन 60, where we have discussed about the application of the payment where debt to be discharged is not indicated. So when it is up to section 60, we have discussed under section 60 that when there is nothing has been specifically indicated that which amount of the debt should be first disposed of, in that specific circumstances, it is up to the person who is taking the debt. Okay. He will apply the debts accordingly. Okay. Just like, for example, take an example of this.
And yes, the time factor is the most important factor over here, the time and amount of the debt, and the amount of the debt which is up to the earlier time. Okay. For example, a debt is there is a debt between you and me. The debt is supposed to be completed before 31st of अक्टूबर. ओके. 31 अक्टूबर तक मुझे आपको एक डेप्ट का पेमेंट करना है. मैंने बाकी भी दो अलग अलग डेप्ट आपसे लिया है, बाकी भी दो अलग अलग पैसे मैंने आपसे लिया है, बट उसी का जो रीपेमेंट का डेट है ना, वो सितंबर महीने पे है, वो अभी अक्टूबर पे नहीं है. तो मैंने आपको अगर कुछ पैसा डिपॉजिट करती हूँ मैं आपके पास, तो दैट विल बी डिपेंड अपॉन व्हाट, द टाइम फैक्टर. कि यहाँ पे पहले ये देखा जाएगा कि अगर आपने कुछ स्पेसिफिकली बोलते हो कि हाँ, मैं जो 10 तारीख को मैंने जो डेप्ट आपसे लिया था 10,000 का, उसी डेप्ट का रिपेमेंट के लिए मैंने ये पेमेंट कर रही हूँ. अगर मैं ये चीज स्पेसिफाई करती हूँ, देन द डेप्ट विल बी पेड टू दैट स्पेसिफिक डेप्ट ओनली. वही स्पेसिफिक डेप्ट का रिपेमेंट माना जाएगा इफ इट इज स्पेसिफाइड बाय द पर्सन हु इज डूइंग द पेमेंट. बट इफ देर इज नो स्पेसिफिक मेंशन हैज बीन डन, अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेंशन किया नहीं गया है कि किस चीज का, किस डेप्ट का रिपेमेंट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10,000 आया, मैंने आपको पेमेंट कर दिया, और मैंने आपसे अलग अलग डेप्ट करके 20,000 रुपया लेके रखा है. मतलब फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आई हैव टेकन 5,000 फ्रॉम यू, फिर मैंने आपसे 10,000 लिया है, फिर मैंने आपसे 2,000 लिया है, फिर मैंने आपसे 3,000 लिया है. तो ऐसे चार अलग अलग करके 4 different debts I have taken the amount of whole 20,000 from you and I got the amount of 10,000. मैंने क्या किया, आपको जाके 10,000 दे दिया कि भाई 10,000 रख लो, है ना. तो आप मुझे पूछेंगे, आप पहले बात ये है कि मैंने जो 10,000 आपको दिया, मुझे स्पेसिफाई करना चाहिए था कि मैंने आपसे चार अलग अलग लोन लिया है. पहला पहला मैंने लिया था 5,000 का, उसके बाद लिया 10,000 का, उसके बाद लिया 3,000 का, और उसके लास्ट में मैंने लिया 2,000 का. ये चार अलग अलग जो लोन मैंने लिया है, उसी लोन से कौन सा लोन का इम्प्लीकेबिलिटी यहाँ पे होगा. ये जो पेमेंट मैंने दिया रिपेमेंट करने के लिए, ये पेमेंट किस लोन का एज द रिपेमेंट कंसिडर किया जाएगा. आई हैव नथिंग, मैंने ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं किया है. ओके. सो व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड, जहाँ पे ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं हो रखा है, वहां पे क्या होता है, द टाइम फैक्टर टेक्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. टाइम फैक्टर कैसे इंपॉर्टेंट रोल लेता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने बोला कि चार अलग अलग डेप्ट मैंने लेके रखा है. मान लो पहले मैंने जो आपसे 5,000 अमाउंट का 5,000 का डेप्ट लिया है, उसी का रीपेमेंट का डेप्ट है 5th ऑफ द सितंबर, 5 सितंबर. दूसरा जो 10,000 का मैंने आपसे लिया है, उसी का रीपेमेंट का डेट फिक्स हुआ है 31st ऑफ द अक्टूबर. उसके बाद जो 3,000 का लिया है, उस 3,000 और 2,000 का, उन दोनों का रीपेमेंट का डेट मैंने आपको दिया है दिसंबर. ओके. तो यहाँ पे पहला रिकवरी का टाइम कौन सा डेप्ट का आता है, 10,000 वाला डेप्ट का. 10,000 जो मैंने आपने मुझसे लिया था, तभी ये डील हुआ था कि द 10,000 अमाउंट शुड बी पेड फास्टर, मीन्स 31st अक्टूबर तक ये 10,000 का रिपेमेंट हो जाना चाहिए. जब मैंने आपको 10,000 रुपया पेमेंट करती हूँ, और मैं कुछ स्पेसिफाई करती नहीं हूँ कि मुझे कौन सा डेप्ट का रिपेमेंट करना है, यहाँ पे दिस इज योर ड्यूटी. जो पैसा लेता है उसका ड्यूटी, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड कि ये जो अमाउंट मुझे मिला, मैं उसको कौन सा डेप्ट का रिपेमेंट के हिसाब से कंसिडर करूंगी. पहला वाला डेप्ट जिसका डेट नजदीक आ चुका है, मतलब 31st ऑफ द अक्टूबर 10,000 का जो डेप्ट है, उसी का डेट आसपास आ चुका है, तो पहले उसका रिकवरी करना जरूरी है. दैट इज वाई वहां पे ये डिसाइड किया जाएगा कि किस डेप्ट का ड्यू डेट पहला है, एंड अकॉर्डिंगली द अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज द रीपेमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक डेप्ट. क्लियर. तो ये हो गया आपका सेक्शन 60 एंड 61. ओके. एंड वन मोर थिंग, इफ द डेट्स आर ऑफ द इक्वल स्टैंडिंग,
इक्वल स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? यू मे आस्क मी, मैम आप बोल रहे कि इक्वल स्टैंडिंग, डेप्थ ऑफ द इक्वल स्टैंडिंग का क्या मतलब हो सकता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वल स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि व्हेन द डेप्थ्स आर स्टैंडिंग एट द सिमिलर टाइमलाइन, सेम टाइमलाइन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जैसे कि आई हैव, हाउ टू से इट, ओके, फॉर एग्जाम्पल there is a, let's take an example of this. I have taken the debt from you, three different debts from you from one specific date. जैसे कि today is the date of the 27th of the October, and on 27th of the October I have taken three different kinds of the debt from you. The first debt was of the rupees 5,000, the second debt was of the rupees 12,000, and the third debt was up to the rupees 3,000. Okay, तो मैंने तीन अलग अलग डेट आपसे ले रखा है। कौन सा दिन पे? ऑन 27th ऑफ द अक्टूबर। देयर इज ए स्पेसिफिक डे इज ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर हियर। एक ही डेट पे तीन अलग अलग डेट मैं आपसे ले चुकी हूं। तो वो सब जो डेट का ड्यू डेट कब है? मान लो 5th ऑफ द सितंबर, 5th सितंबर को मुझे वो सारा डेट का रीपेमेंट आपको करना है। तो उसको बोलते हैं डेब्ट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग। सो इक्वल स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जब सारा डेब्ट एक ही दिन पे किया गया हो, या फिर उसका जो ड्यू डेट है, जिस दिन पे पेमेंट करना है, वो एक ही दिन का हो। द ड्यू डेट इज एट द वन डेट। तो डेब्ट ना सारा इक्विवेलेंटली चल रहा है। द डेब्ट इज कंटिन्यूइंग एज ऑफ द इक्वल स्टैंडिंग। क्लियर? So when the debt is of the equal standing, then in that case, the payment shall be applied to the discharge of each proportionably. Proportionably मतलब, if for example I am paying you the amount of the 12,000 of the rupees, but I have taken the 20,000 from you. पहला मैंने आपसे लिया था 5,000, उसके बाद मैंने लिया आपसे 12,000, उसके बाद लिया मैंने आपसे 3,000। तो ये जो तीन अलग अलग डेप्थ है ना, उसको प्रोपोर्शनेट करके, मतलब इक्विवेलेंटली, जो मैंने 12,000 रुपया आपको दिया है, वो डेप्ट का रिकवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आपके पास जो 12,000 को अगर हम तीन में डिवाइड करते हैं, कितना हुआ? 4,000 ईच। ओके, सो आई हैव पेड यू द अमाउंट ऑफ द 12,000। तो पहला डेप्ट मैंने जो लिया था, कितने का लिया था? 5,000 का। उससे डेप्ट को कितना जाएगा? 4,000। बचेगा कितना? 1,000। बाकी दूसरा जो मैंने लिया था, कितने का लिया था? 12,000। वहां पे कितना रिपेमेंट होगा? 4,000। ओके, सो वहां पे और कितना बचेगा? 12,000 का रिपेमेंट करना था एट द सेकेंड ऑफ द डेप्ट। ओके, एंड 4,000 मैंने कर दिया, और कितना बचेगा? 8,000। और तीसरा जो डेप्ट था, वो कहाँ पे था? वो कितने का था? 3,000 का। तो वहां पे मैंने कितना रिपेमेंट करने को मेरे पास है? 4,000। मैंने वहां पे 3,000 भर दिया। ओके, तो वहां पे ये जो 3,000 वाला डेप्ट है, उसी का कंप्लीट रिपेमेंट वहां पे हो जाएगा। बट बाकी दोनों का जो है ना, तो उसी का प्रोपोर्शनेबली, कि हाँ 1:1, 2:2, इतना प्रॉपर तरीके से प्रोपोर्शनेटली ही उसी का रीपेमेंट डिसाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ द Indian Contract Act. Okay. So the next point comes contracts which need not to be performed. Which kind of the contract जो कि perform होने का जरूरत ही नहीं है. Let's understand about that. When we are talking about the contract which need not to be performed, then the question arises, what are those kind of the contract which need not to be performed, जिसका परफॉर्मेंस करना जरूरी नहीं होता है ना? The first point, okay, section 61, application of the payment, sorry, section 62 onwards, it has been explained. Section 62 specifies effect of novation
रेसिशन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या बोला गया? इफेक्ट ऑफ द नोवेशन, रेसिशन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो when we are talking about the novation means the negotiation, the declining of a contract। जहाँ पे मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नेगोशिएट कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द नोवेशन। रेसिशन मीन्स डिनाइंग, द सेम मीनिंग। एंड ऑल्टरनेशन, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर किया जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एक टर्म्स एंड कंडीशन से उसी को रिप्लेस करके नया टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज किया जाता है कि नहीं, पहले ये होने वाला था, अभी ये नहीं होगा, दूसरा इंप्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री to substitute a new contract for it or rescind it or alter it, the original contract need not to be performed. What does it mean? For example, you and me are the two parties. We are entering into a contract जहाँ पे हम दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा है कि I am going to teach you the whole syllabus of the Indian Contract Act, and in return you are going to pay me the amount of the 10,000 of the rupees. Okay. तो यहाँ पे हमारे बीच में डील क्या हुआ कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट सिखाऊंगी एंड उसी के बदले आप मुझे 10,000 रुपया का पेमेंट करोगे। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कॉन्ट्रैक्ट पे कोई रेसिशन हो गया। रेसिशन क्या हुआ कि आपने मुझे बोला कि नहीं मैम, मैं 10,000 का अमाउंट जो है नहीं दे पाऊंगी, आई एम अनेबल टू पे यू द अमाउंट ऑफ द 10,000। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे 10,000 रुपया पेमेंट मत करो, बट मैं आपको उसी से कम पैसे में, मतलब इफ यू आर पेइंग मी द 8,000 ऑफ द रुपीज, तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ओके, सो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द रेसिशन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहले क्या था, 10,000 के बदले मैं आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ाने वाली थी, बट जब यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्टरनेशन हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या हुआ ऑल्टरनेशन कि मैं आपको वही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगी, बट उसी के बदले आप मुझे 10,000 नहीं 8,000 रुपए का पेमेंट देंगे। तो यहाँ पे द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट टेक एन इफेक्ट बिकॉज द न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डन विद द कंसेंट ऑफ द बोथ ऑफ द पार्टीज। यहाँ पे हु आर द पार्टीज? यू एंड मी। So as the party who is taking the money, जो पैसा ले रही है, कौन ले रही है? मैं पैसा ले रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ ठीक है, 10,000 के बदले अगर आप 8,000 भी देते हो तो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो आज आई एम एग्रीइंग द ऑल्टरनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का जो दूसरा ऑल्टरनेशन हो रहा है ना, उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। And in that specific circumstances, if the alternation of the contract is accepted by both of the parties, अगर दोनों पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट का ऑल्टरनेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नेगोशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्टरनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन इन दैट स्पेसिफिक केस द न्यू कॉन्ट्रैक्ट विल बी एनफोर्स्ड। यहाँ पे जो नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है कि आप मुझे 8,000 दोगे एंड उसी के बदले में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगी, दैट विल कम एन इफेक्ट। क्लियर? समझ में आ गया? जैसे कि उसी का एक दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम जो ऑल्टरनेशन की बात करते हैं ना, ऑल्टरनेशन एंड हम रिसाइंड इट और ऑल्टर इट की अबाउट तो बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा नेगोशिएट हो जाता है या रिसाइंड हो जाता है, वहां पे क्या होता है? इज द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल एनफोर्सेबल व्हेन इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द पार्टीज? द आंसर इज नो, है ना। यहाँ पे आप और मेरे बीच में डील हुआ था कि यू आर गोइंग टू पे मी द अमाउंट ऑफ 8,000 ऑफ द रुपीज एंड उसी के बदले आई एम गोइंग टू टीच यू द होल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट मान लो आपने मुझे बोला कि नो मैम, आई एम नेगोशिएटिंग ओवर हियर, आई एम रिसाइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइडिंग आप यहाँ पे कर रहे हो अपने अपनी तरफ से,
आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं मैं यहाँ पे 8,000 रुपये आपको नहीं दे सकती, तो मैं यहाँ पे क्या बोलती हूँ कि जो कि हमने पहले से पढ़ चुके हैं, अगर दूसरा पार्टी जो है यू आर द अनदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एंड यू आर नेगोशिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा पार्टी हो एंड आप ही कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट कर रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं मैम मैं तो यहाँ पे पैसा नहीं दूंगा। अगर आप मुझे पैसा नहीं दोगे तो क्या मैं आपको पढ़ाऊंगी? द आंसर इज नो, इट इज माई डिस्क्रिप्शन। बिना पैसे के मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं वो मैं डिसाइड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं अगर पैसा नहीं ले रही हूं तो मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। सो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो रिसाइंड हो गया, वो नेगोशिएट हो गया। आपने मना कर दिया कि नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा, और मैंने यहाँ पे क्या बोली कि चलो अगर मेरा जो भी अपोनेंट पार्टी है अगर वो मुझे पैसा नहीं दे रहा तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे जो ऑल ओवर द कॉन्ट्रैक्ट है ना वो फ्रीज हो गया, वो नेगोशिएट हो गया, उसी का इम्प्लीकेबिलिटी जो था, उसी का जो इम्पैक्ट था वो क्लोज हो गया। सो द नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज नो मोर इफेक्टेबल एट ऑल। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हो चुका है। आप पैसा देने को मना किए, मैंने भी पढ़ाने को मना कर दिया। बट मान लो जैसे कि हम दूसरा सिचुएशन पे डिस्कस कर रहे थे कि मैंने आपको 10,000 के बदले 8,000 के अमाउंट में पढ़ाने को तैयार हो गया, तो यहाँ पे जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था 10,000 के बदले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने का, वो क्या हुआ, वो एनफोर्सेबल नहीं रहा। जो नया कॉन्ट्रैक्ट आया कि 8,000 के बदले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने का, दैट बिकेम लीगली एनफोर्सेबल, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ कि चलो मेरे अब देयर आर सर्टन सिचुएशंस आर ओवर हियर, मेरा कोई दिक्कत है तो मैं आपको अभी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं पढ़ा पाऊंगी बट मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगी, है ना। तो आप यहाँ पे मान गए कि ठीक है 10,000 हम देने को तैयार है। मैम इवन इफ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा पा रहे तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने को के लिए कंफर्टेबल है तो भी हम आपके पास पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन या ऑल्टरनेशन किसके तरफ से हुआ, प्रोमिसर के तरफ से हुआ। आई एम द प्रोमिसर। इसके पहले मैं जो डिस्कस कर रही थी कि पैसे का जो डिस्कस कर रहे थे हम कि फॉर एग्जाम्पल पहले आपको मुझे 10,000 देना था बट आप मुझे 8,000 में मेरे साथ डील डन कर दिए। यहाँ पे जो नेगोशिएशन एंड ऑल्टरनेशन हुआ था वो किसके तरफ से हुआ था, प्रोमिसरी के तरफ से हुआ था। बट यहाँ पे एट दिस सिचुएशन ऑल्टरनेशन एंड नेगोशिएशन किसके तरफ से हो रहा है, प्रोमिसर के तरफ से हो रहा है। आई एम द प्रोमिसर एंड आई एम टेलिंग यू नहीं मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ाऊंगी बट मैं आपको हिंदू लॉ सॉरी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के बदले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने को तैयार हूँ एंड यू आर ऑल्सो एग्रीइंग टू इट। आप बोल रहे कि हाँ ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा लो, वी आर ऑल्सो रेडी टू पे यू। सो यहाँ पे द न्यू कॉन्ट्रैक्ट विल टेक एन इफेक्ट। न्यू कॉन्ट्रैक्ट विल टेक एन इफेक्ट मतलब यहाँ पे पहला जो टर्म्स एंड कंडीशंस था कि 10,000 के बदले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना है, अभी और रिप्लेस हो गया विद द न्यू एक्ट, विद द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस दैट 10,000 के बदले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है। गॉट इट। सो दिस इज अबाउट सेक्शन 62 इफेक्ट ऑफ द नोवेशन रेसिशन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दूसरा एक एग्जांपल आपको एक इलस्ट्रेशन बता देती हूँ जो कि आपका बेयर एक्ट में मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल ए ओज मनी टू बी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मतलब बी से ए ने पैसा लिया है। हु इज द डेप्टर, डेप्टर कौन होता है, जो पैसा देता है। ओके, पेयर और पे मान लो, हु इज द पेयर, A is B is the pair. B has given the money to whom? To A. तो यहाँ पे A is supposed to pay the debt to B. Okay. तो यहाँ पे मान लो there are certain situations जहाँ पे A, B and C are entering into a contract.
एंड यहाँ पे C is ready to pay the debt on behalf of A. ओके, तो यहाँ पे जो डेब्ट था, जो अमाउंट था, उसको किसको पेमेंट करना था? ए को पेमेंट करना था। ए किसको पेमेंट करता? बी को पेमेंट करता। बट यहाँ पे सी ने बोला कि नहीं भाई, तुम रहने दो, तुम्हारे लिए मैं पेमेंट कर लूंगा। सो ए के बदले हु बिकेम द डेप्टर ऑफ द बी? सी बिकेम द डेप्टर ऑफ द बी। तो यहाँ पे जो रीपेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ए से हट के सी के ऊपर आ गया। एंड हियर दिस इज कॉल्ड द ऑल्टरनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में कि ए विल रीपेमेंट टू बी, A has owned the money to B, but according to the new contract, A is no more liable to pay the money to B. C is liable to pay the money to B, and C is the new debtor of B. Got it? So this is called the alternation, जहां पे हमने पहले क्या पढ़ा कि A was supposed to pay the debt to B, but according to the new contract, not A, but C will do the payment of debt to B. A के बदले नया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेमेंट कौन करेगा? C करेगा। And here the old contract will not be enforced anymore. ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एनफोर्स नहीं होगा। नया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द रीपेमेंट ओवर हियर। गॉट इट? देन कम्स सेक्शन 63। ये क्या बोलता है? प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसेस। ओके, व्हेन द प्रोमिसी dispenses or remits the performance of the promise at that specific place, the promiser is not bound to do the performance. Every promisee may dispense with a remit wholly or in part the performance of the promise made to him, or may extend the time for such performance, or may accept instead it by any satisfaction which he thinks fit. Okay, तो यहाँ पे ये बोलता है there are the two parties, first the promiser and the promisee. Okay, so यहाँ पे मान लो there is the contract between A and B कि A is supposed to make a picture of B. A B का एक अच्छा खासा पेंटिंग बनाएगा। तो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पेंटिंग, बिफोर द डिलीवरी ऑफ द पेंटिंग, ए ने बी को बोला कि हाँ ठीक है, मैं पेंटिंग डिलीवरी कर दूंगा ऑन द ड्यू टाइम। बट यहाँ पे बी का माइंड चेंज हो जाता है। बी ने बोला ए को कि नहीं, मुझे पेंटिंग नहीं चाहिए, आई डोंट वांट द पेंटिंग एनी मोर। सो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएट हुआ, रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? प्रोमिसी ने किया। हु इज द प्रोमिसी? बी इज द प्रोमिसी। जो आर्ट या जो पिक्चर बना रहा था ए, किसके लिए बना रहा था? बी के लिए बना रहा था। बी ने बोला कि नहीं, मुझे पेंटिंग नहीं लेना है। ओके, सो हियर ए इज फ्री टू डू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स जब बी ने मना ही कर दिया कि उसी को पेंटिंग चाहिए ही नहीं, तो ए को पेंटिंग करने का या पेंटिंग का डिलीवरी करने का कोई जरूरत नहीं है ना? If B has rescinded or negotiated the contract on his behalf, in that specific case, the promiser is also not liable, not responsible to do the performance of the promise. Okay? And it is the discretion of the promisee that if the promiser is doing the performance to him even after the denial, then it is the discretion of the promisee either to accept
or to deny the performance of the contract if he thinks fit. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले जो आपको एग्जाम्पल समझा रही थी कि मान लो देर इज द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। ए ने बी को बोला कि हाँ, बी ने ए को पहले बोला कि मेरा एक पेंटिंग बना दो। ए ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपका पेंटिंग बनाने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद ए ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं बना दूंगा, बट उसी के लिए आई हैव टू टेक द अमाउंट ऑफ द 5,000 ऑफ द रुपीज, मुझे 5,000 रुपये लेना लेना होगा। तो बी ने बोला कि ठीक है, आई एम रेडी टू डू द पेमेंट, आप पहले पेंटिंग डिलीवर कर दो, फिर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, है ना। देन ए स्टार्टेड वर्किंग ऑन द पेंटिंग। पेंटिंग का काम जब चल रहा था तभी बी का माइंड चेंज हो गया। बी ने बोला कि नहीं, मुझे तो अब पेंटिंग चाहिए ही नहीं, है ना। बट यहाँ पे ए वॉज सपोज टू डू द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट आज यहाँ पे बी ने मना कर दिया टू डू द परफॉर्मेंस, देन ए इज नॉट लायबल टू डू द डिलीवरी ऑफ द पेंटिंग टू बी। यहाँ पे आज बी ने मना कर चुका है, तो यहाँ पे ए का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और टू डू द डिलीवरी ऑफ द पेंट। बट इवन आफ्टर दैट, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए हैज कंप्लीटेड द वर्क ऑफ द पेंटिंग, ए ने पेंटिंग का काम खत्म कर चुका है, उसके बाद बी ने मना करता है, तो ए बोलेगा कि मैं अभी ये पेंटिंग को रख के क्या करूंगा, ये तो आपके लिए था तो आप ही रख लो। ए इवन आफ्टर द डिनायल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ए इज डिलीवरिंग द पेंटिंग टू बी। ए ने क्या करता है, बी को पेंटिंग डिलीवरी कर देता है। सो नाउ दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बी, either to accept the contract or to negotiate the contract। मतलब यहाँ पे ए का जो भी पेंटिंग है उसी को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, दैट इज द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ बी इटसेल्फ कि वो क्या करेगा इन दिस सिचुएशन। ये हो गया आपका सेक्शन 63। देन कम्स सेक्शन 64। ओके, Section 64 speaks about the consequences of the rescission of a voidable contract. Okay. So when there is the rescission of a voidable contract, okay, when one party, it might be the promisor or the promisee or the party who is actually suffering due to the voidability of the contract. We have already understood when we are studying, when we are learning about the voidability of the contract, we are talking about this that when a contract is called as the voidable contract, then the party who is suffering due to the voidability of the contract का ये voidability nature के वजह से जो party सफर कर रहा है, this is the discretion of the party to decide whether the party wants to continue with the contract or the party wants to close the contract. Okay, अगर कॉन्ट्रैक्ट का voidable नेचर के वजह से मुझे दिक्कत हो रहा है या फिर मैं किसी भी तरह का सफर फेस कर रही हूँ या फिर आई एम सफरिंग एनी काइंड ऑफ द लॉस ड्यू टू द voidability of the contract, then it is my discretion, it is my choice that I want to continue with the contract or I want to close the contract. This is the discretion of the party who is suffering, that the party wants to continue with the voidable contract or want to close the voidable contract. And in this situation, the party who has the right to decide the nature of the voidability of the contract or to the party wants to continue or not, and the party decides no, I don't want to continue anymore. Okay, so when there is the rescission of a voidable contract, then the promisor need not to perform the promise anymore. जहां पे the party who has the right to decide that he or she wants to continue with the contract anymore or not, and the party decides no, I don't want to continue with the contract anymore, in that circumstances the person who is the promisor, यहाँ पे promisor जो था, जो party था, he is no more responsible
to enforce the contract anymore. He is not responsible to do the performance of the contract anymore. क्योंकि यहाँ पे even if the contract is voidable, the party has already resigned, already negotiated for the performance, and यहाँ पे the contract is not in force anymore. तो यहाँ पे the promisor has no responsibility to do the performance of the contract. But the party who has the right to resign, जिस पार्टी ने मना कर दिया कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं करना है, मान लो द पार्टी हैज टेकन एनी काइंड ऑफ द बेनिफिट्स ऑन द फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, so he or she has to return the another party or the promisor that specific benefit. For example, एक कॉन्ट्रैक्ट voidable in nature है, तो प्रोमिसी जो है उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यू नहीं करना है, बट उस voidable कॉन्ट्रैक्ट से इस पार्टी को, द प्रोमिसी को ऑलरेडी 10,000 रुपया का बेनिफिट हो चुका है. द पार्टी हैज ऑलरेडी टेकन द 10,000 अमाउंट ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट. सो यहाँ पे व्हेन द पार्टी इज डिनाइंग दैट नो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एनीमोर, उसी के साथ साथ उसने जो 10,000 रुपया का बेनिफिट ऑलरेडी एंजॉय कर चुका है, ही और सी हैज टू गिव बैक दैट स्पेसिफिक अमाउंट. वो 10,000 रुपया उसी को वापस देना पड़ेगा. द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द गेन, द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट जो कि उसी ने, द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द गेन और द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट जो कि उसी ने ऑलरेडी ले चुका है, द पार्टी इज सपोज टू और बाउंड टू डू द रीपेमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक बेनिफिट. ओके, यहाँ पे पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि ये जो स्पेसिफिक बेनिफिट उसने गेन किया है, द पार्टी हैज टू पे बैक द स्पेसिफिक बेनिफिट टू द ओरिजिनल पार्टी और टू द प्रोमिसर इटसेल्फ. ओके, ये हो गया आपका सेक्शन 64. ओके, देन आपका आता है सेक्शन 65. It speaks about the obligation of person who has received advantage under the void agreement and or the contract that becomes void. So section 65 speaks about the void contract, the contract who is a void in nature. Okay, so what does this section means? When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he has received it. Okay, so when the agreement is discovered to be void, for example, there is the agreement between you and me, and later the agreement is discovered that this agreement is not valid anymore. This agreement is totally void in nature. So here we need to consider that even if the agreement is void in nature, even if the nature of the agreement is void, okay, वहां पे क्या होता है ना, if the party, if the promisee has taken the benefit from that void agreement, अगर यहाँ पे जो पार्टी है ना वो उस void agreement से कोई benefit already pursue कर चुका है, then the party has the responsibility to restore or to do the compensation to the person from whom that specific benefit has been taken. यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल देयर इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग दैट व्हेन देयर इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी, after some days it has been discovered the contract is not valid anymore, it is a void agreement. But from that specific contract I have performed my duty, I have done my performance of the contract, and from my performance you have gained the profit of 1 lakh of the rupees. So यहाँ पे you have to compensate me the specific amount of the 1 lakh in return.
because यहाँ पे due to my performance of the contract, before the contract has before the big void of the contract, okay, जब contract void नहीं हुआ था, before the contract becoming void, you have already taken the benefit of 1 lakh rupees from that specific contract. So here you are bound to do the repayment or to give the compensation to the party from whom you have received the contract. Got it? This is explained under section 65 of the Indian Contract Act. So from section 66 onwards, we are going to discuss in the next class. This is all for today, guys. We can drop the class over here. See you all in the next class. Thank you. Take care. Bye bye.